Hello, curious people. Today we will talk about statistic. So week one is completed, and I will do four videos of four subjects of week one. So introduction of mathematics is completed. So now we will go with statistic, and I will complete the whole thing whatever has been taught in the first week. Okay, so without further ado, we will get into the content we have received in the first week. So starting with a question: statistic. What is statistic? Now, some of you might be imagining some graphs or something, pie chart or something. That is a part of statistic, but statistic is much more than that. So, mainly, statistic can be divided into two subcategories, which is first is descriptive statistic, and the second is inferential statistic. Okay, in descriptive statistic you just gather data, take insights from it and summarize it. Basically you summarize the data. In while in the descriptive statistic you just summarize the data whatever you have. In inferential statistic you predict something out of small portion of the data. Okay, so if I want to know what's the literacy rate in India, I can't go to every house and ask what's your educational qualification. So what I will do is I will pick some people out of every state and make a report on them, and based on that report I will draw a conclusion that the literacy rate is xyz based on the report. For example, 88%. It's just a hypothetical example. So if the report gets 88%, then I will conclude that okay, in overall India the literacy rate is 88%. But it's approx, it's not accurate. Okay, it's approx, it's my estimation. This word is very common in statistics. Estimation. You are estimating, but you are estimating in a such a way that it is very likely that it will be true. It will be true because you are using such methods in statistics that your approximation is almost near to true. Okay, so these were two subcategories: descriptive and inferential statistic. Now, why you want to describe a data or draw any conclusion? That's a big question, right? Why you want to describe anything or you draw a conclusion? Let's take an example of a company. Now, for example, Spotify, my favorite app. I just love listening to music, and I have made a lot of playlists on Spotify, but I have not taken any subscription. But it gives me a good recommendations, like amazing. Or whichever song it recommends to me, it's more likely that I will like. How does it is recommending me so accurately that my preferences are so accurately captured by the Spotify's algorithm? Now here comes the data. When I click on any song, when I am listening to any song, the duration of the song, the frequency of any song which I listen,
at which time of the day I listen to the song, at which is there any trend in the whole year. In January some these songs, in March and April some these songs were played, and in December some these songs according to festival might be, or anything like wedding or birthday something. It tracks everything. Now what is this? It is it This is everything data, like my data. Now like me, there are millions of users of Spotify globally. Now if if you are provided with such amount of data, I'm damn sure you will go mad. Because it's not a small data, it's very big. So here comes the part of statistic. At this moment, the students who are studying statistics should be proud. You have a great future, because the data is not going to be reduced. It's going to be increasing in upcoming years a lot, because people are moving towards online e-commerce. My even friendships even friendships are becoming virtual. Everything is going virtual, so the data will be on the internet will be increasing, not decreasing. So here comes the part of statistic. We collect the data, we analyze the data. Okay, so whenever I tap into any song or listen to song, all of that information is stored by the Spotify's algorithm. Then it summarizes it. It makes a report on that data. Okay, so it makes a report on that data, and then makes some insights like this. It predicts that she is listening to this genre, so might be she is more likely to like this song also, and then it recommends. It's a very complicated process that we will cover in the upcoming videos as I am learning further. For now, we will stick to broader category, descriptive and inferential. Now, let's go dig deeper into this. Now, let me pronounce the definition of descriptive so you will get an idea. Descriptive is concerned with description and summarization of data. As I told you, it's just describing the data and summarizing whatever the data has, the information. It's all summarizing. Okay. Then inferential is concerned with drawing conclusion from the data, especially from sample. It's drawing some information, giving a conclusion on population. So yesterday there was a TA class, on live class, and that TA was amazing. She told something very powerful, and I'm not able to get confused between anything like inferential and descriptive. Before it was very confusing. She gave an example of our day-to-day lives. वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल, लाइक चलो हिंदी में बात करते हैं. घर में जब भी कुकर में हम चावल पकाते हैं, तो हम पूरे कुकर में के सभी चावल उठा के थोड़ी ना चेक करते हैं कि ये पकाए कि नहीं, ये पकाए कि नहीं, ये पकाए. वी डोंट डू दैट, राइट. हम कुछ एक ही चावल देखते हैं और अच्छा पक चुका है, हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कुकर में के बाकी सभी चावल पक चुके हैं. तो दैट इज इन्फरेंशियल. इफ आई एक ही दाना उठा के मैं ये बोलूँ कि हाँ, ये एक ही दाना पक चुका है,
Now I am describing only the data regarding the one grain of rice. That is descriptive. And if I am taking data from the one grain of rice and making a conclusion on the entire population, that is inferential. I'm concluding, I'm drawing conclusion. Okay, what is inference? Inference, the process of making a logical conclusion. Okay, so this is descriptive and inferential statistics. Now I just explained you what is population, what is sample. Let me read the definition also. Population, total collection of all the elements in which we are interested. Okay, total collection of all the population in which we are interested. In the first example at the starting of the video I gave you, I want to check the literacy rate of India. For in that case, the whole population of India is my population. Now don't confuse with population, demographic population and this statistical population. Population is whole and sample is subset of it. Okay, it's a part of it. Now sample is a subgroup of the population that will be studied in detail. वो कुकर वाला एग्जाम्पल, पॉपुलेशन था पूरा कुकर में के सभी चावल, सैम्पल का था वो एक दाना. तो sample is the subgroup of the whole population that will be studied in detail. से इसे देखेंगे पकाएंगे नहीं, उसको पूरा स्मैश कर देंगे तो हो गया, तो पूरा पकाए. ओके, तो in detail, that is sample. Now what is data? डेटा कर क्या, डेटा क्या है बताओ उसको. डेटा क्या है? डेटा कुछ नहीं है. डेटा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है. इन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया. आर द फैक्ट, डेटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड, एनालाइज एंड समराइज फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन. मैं कहूँगी डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन है. वो कैसे भी आ सकती है. इट मे बी इन एनी फॉर्म. It may be visual, it may be in text, it may be in video, it may be in code. Anything, any kind of information is data. Any kind of information. Okay, sorry. Now statistic purely relies on data. If you don't have any data, you can't perform statistical operations or practice statistics. It's impossible. Without data, how you can do statistics? Statistics is data. So it purely relies on data. Okay. Now there are two types of data, structured and unstructured. Now what is structured? अभी इसमें कोई कंफ्यूज की बात नहीं है. स्ट्रक्चर्ड वो डेटा है, अपने स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर को याद करो, वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा. आपका नाम एक कॉलम में लिखा होगा, उसके आगे आपका रोल नंबर, उसके आगे अटेंडेंस है ना, ये तो प्रेजेंट और अब्सेंट, उसमें डेट होगी कब का, सब कुछ होगा. दैट इज स्ट्रक्चर. आप कहीं भी एक सेल, मतलब वो एक बॉक्स था, एक बॉक्स को पॉइंट आउट करोगे और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे देखोगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कब रिकॉर्ड किया गया था, ये किसका रिकॉर्ड है, ये एब्सेंट था, प्रेजेंट था, क्या है, ये सभी वो स्ट्रक्चर्ड है. आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. व्हाट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है आपके व्हाट्सएप के चार्ट्स.
अब मैं नाम नहीं लूँगी किसके साथ, बट आप समझ जाओगे, आप समझदार हो। तो जो भी व्हाट्सअप के चैट्स हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड है। आपको दिखेगा दिस डेट यू गॉट दिस मैसेजेस, बट आर दे इन अ फॉर्मेट ऑफ अ टेबल where you can point out and say this message was sent by this person at this time? No, it's all messy, सब कुछ कचरा भरा पड़ा है। सो वो अनस्ट्रक्चर्ड है, टेबल में नहीं है वो, ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड, इतना ही है। अब जाते हैं अब स्ट्रक्चर, हम फोकस करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा पे। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा में कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं। रोज आदि केसेस, एक एक पूरा उसके उस एक वेरिएबल का पूरी इंफॉर्मेशन होती है ना, नाम, इस डे पे absent था, इस डे पे प्रेजेंट था, whatever, रोल नंबर इसका ये है, उस एक रो में सारी इंफॉर्मेशन होगी उस एक ऑब्जर्वेशन की, एक केस की। अब एक कॉलम में होता है रोल नंबर, या नीचे सारे रोल नंबर्स होते हैं, वो वेरिएबल है ना। कॉलम्स में वेरिएबल्स होते हैं, नाम वेरिएबल है, नाम बदल सकता है ना। वेरिएबल मतलब माने जो चेंज होता है समय के साथ, बदलता रहता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वाओ, ये वेरिएबल तो 8 से है हमारे साथ, अलजेब्रा, फाइंड एक्स फाइंड वाई। ओके, सो हमने वेरिएबल भी ढूंढे। ईच वेरिएबल मस्ट हैव इट्स ओन कॉलम, ईच केस मस्ट हैव इट्स ओन रो। अपनी एक रो होनी चाहिए हर केस की, और हर वेरिएबल का एक कॉलम होना चाहिए। लड़ रहे मैं यार रहूँगा नहीं, दोनों के अलग अलग वेरिएबल। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अभी मज़ेदार भाई, ये मस्त है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब डेटा तो मिल गया, डेटा तो मिल गया, अब उसे क्लासिफाई करना होगा। कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल मतलब वो क्वालिटेटिव डेटा है ना, उससे हम कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते उस पर, सिर्फ लेबल्स होते हैं। जैसे कि मेल फीमेल, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, बुक का नाम, व्हाटएवर, पेन का नाम, लेबल्स होते हैं सिर्फ। इट मे बी इन ऑर्डर, तो डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूज होगा। पहले तो क्या है, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगोरिकल में क्या डेटा है अभी, अच्छा ठीक है, कैटेगोरिकल में क्वालिटीज़ होती है, ग्रुप की मेंबरशिप होती है, मतलब एक ये ग्रुप का है, ये इस ग्रुप, मेल फीमेल ही ले लो, जेंडर, ये मेल है ये फीमेल है, दूसरा अदर्स है, अब तो बहुत सारे आए गए, क्या क्या पता नहीं, क्या वो लेस्बियन, पता नहीं क्या क्या, ऑल ऑफ दोज कैटेगरीज, बट मेजरली अभी भी लोग सिर्फ मेल ही गलत है, उन लोगों को भी सोसाइटी में जगह मिलनी चाहिए। ओके ठीक है, हम वो सिविक्स वाला पार्ट कभी और कवर कर लेंगे, आज हम फोकस करेंगे स्टैटिस्टिक पर। कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है, क्वालिटेटिव, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, वी कैन मेजर इट, इट्स जस्ट ग्रुप, इस ग्रुप से बिलोंग करता है, उस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो ग्रुपिंग होता है सिर्फ। न्यूमेरिकल डेटा क्वांटिटेटिव होता है, जिस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, ओके, मेजर्ड इन अ यूनिट। सो न्यूमेरिकल में दो कैटेगरी है, डिस्क्रीट एंड न्यूमेरिकल, सॉरी कंटिन्यूस। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। व्हाट इज डिस्क्रीट? डिस्क्रीट माने कि होल, उसमें कोई टुकड़ा नहीं है, कंप्लीट है डिस्क्रीट। हम जम कर सकते हैं एक से दूसरे पर, 1 2 3 4 5 6 7 8,200 whatever. So these are discrete. Now what is continuous? Continuous माने कि continuous, जिसका कोई अंत नहीं है। I can tell you 0 और 1 के बीच में मतलब
इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर है। आप कहोगे कैसे 0 और 1 में इतने कैसे होंगे, पॉइंट में है ना। अगेन 0.01, 0.001, 0.0000001, 0.00000000000000000000001, कितने नंबर है, मैं कितना भी लिख सकती हूँ। और ये तो सिर्फ मैंने 0.0001 लिखा, ऐसे 1 2 1 3 ऐसे भरपूर वाह मराठी में आ गई, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। 0.999999999999999999 उसके आगे बना है तो 9 में कितने भी लगा लो, कितने भी, इट्स कंटिन्यूस। इसके एग्जांपल क्या है, हाइट है, वेट है, योर मार्क्स, दीज आर ऑल न्यूमेरिकल कंटिन्यूस वेरिएबल्स। ओके, अब इसमें आते हैं और एक थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन डेटा। क्रॉस सेक्शन डेटा मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा, मतलब इट्स नॉट ओवर द पीरियड, इट्स एट द पॉइंट। अभी अभी का बताओ, इस पॉइंट पे क्या हुआ अभी का बताओ। सो पूरे महीने का एक्सपोर्ट, आप कहोगे ये तो पूरे महीने का एक्सपोर्ट है, उस महीने का, सॉरी पूरे महीने का, पूरे महीने का नहीं बोलेंगे हम, वोकैबुलरी भाई, उस महीने का एक्सपोर्ट, दैट इज क्रॉस सेक्शनल। एक महीने में कितना एक्सपोर्ट हो। टाइम सीरीज मतलब क्या, इस महीने में इतना, इस महीने में इतना, इस महीने में इतना, इस महीने में इतना, ये पूरे साल का है, दिस इज टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल, उस महीने में कितनी सेल्स हुई, बस खत्म, क्रॉस सेक्शनल डेटा। एट द मतलब एक पॉइंट पे डेटा ऑब्जर्व एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, कलेक्टेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पे, नॉट ओवर द टाइम, ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं, डेटा रिकॉर्डेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज टाइम सीरीज डेटा। अब टाइम सीरीज डेटा दिखाने के लिए हम टाइम प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ का नाम है टाइम प्लॉट, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज शोइंग वैल्यूज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइम सीरीज में क्रोनोलॉजी बहुत मैटर करती है, इट्स नॉट कि दिसंबर पहला, बाद में जुलाई, बाद में जनवरी, उसके बाद मार्च, नहीं। अगर आप इंडियन फाइनेंशियल फॉलो करते हैं तो अप्रैल से लेके मार्च तक, अगर आप जनवरी से, देयर इज़ अ ऑर्डर इन इट। अब जाते हैं हम डेटा के मेजरमेंट स्केल्स पे। हमने देख लिया डेटा होता है कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस होता है, उसके बाद में डेटा एक पॉइंट में एक पॉइंट ऑफ टाइम में कलेक्ट किया तो वो क्रॉस सेक्शनल है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में किया तो टाइम सीरीज है। अब हम डेटा को मेजर कैसे करें, स्केल ऑफ मेजरमेंट, हाउ टू मेजर। नाउ देयर आर 4: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। ये 4 स्केल हैं। ये मेरा दिमाग खा गए, लेकिन मैंने ठान लिया कि ये आपका दिमाग नहीं खाएंगे, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। सो चलते हैं, देखो ये 4 हैं, चारों को डिवाइड करते हैं कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल में कौन आता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल क्या है, सिर्फ लेबल है, ऐसे ही एम है, लेबल दे दिया, कुछ भी लेबल दे दिया तुझको, उसमें उसका कोई मीनिंग नहीं है, बस तुझको नाम दे दिया, तू ये है, मेरा नाम श्वेता है, श्वेता श्वेता श्वेता, श्वेता एक लेबल है बस, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, उस पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, श्वेता श्वेता है, श्वेता तो श्वेता है, ठीक है। वो हो गया नॉमिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है बट ऑर्डर है उसमें, जैसे कि गुड, बेटर, एक्सीलेंट, सो देयर इज ऑर्डर। पर इन दोनों के बीच में का गैप सेम नहीं है।
जो आपके लिए गुड है और शायद मेरे लिए बेटर हो, उसका कोई स्केल नहीं है, हम मेजर नहीं कर सकते, उसका फिक्स तो स्केल नहीं है। बस हम बताएं कि बेटर इज़ बेटर फ्रॉम गुड, बेटर गुड से बेटर ही है ना, ये पता है हमको। एक स्केल, एक ऑर्डर है उसमें। ये हो गया कैटेगोरिकल, ख़त्म कर दो। अब आते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में कौन है, इंटरवल और रेशियो। अब इंटरवल में क्या है, फिक्स्ड, ये बीच में गैप फिक्स्ड है, बीच में गैप फिक्स्ड है। जैसे कि टेम्परेचर 1 2 3 4 5 6 वो डिग्रीज सेल्सियस, ये जो है फिक्स्ड है ना। तो लेकिन हम नहीं कह सकते कि 4 डिग्री इज इक्वल टू 8 डिग्री इज इक्वल टू 2 times 4 डिग्री। वी कांट से दैट बिकॉज वो टेम्परेचर अलग है, यू कांट कंपेयर इट, देर इज़ नो रिलेशन। सो वो इंटरवल स्केल है। रेशियो स्केल क्या है कि उस पर, और इंटरवल स्केल पर आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो हो सकता है कि वो रेशियो स्केल में बदल जाए। जैसे कि केल्विन और सेल्सियस, सेल्सियस सेल्सियस ओके, जैसे 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। So if we cancel 273 from the existing Celsius, then we get the exact अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि केल्विन में ज़ीरो के नीचे और कुछ नहीं होता। ज़ीरो इज़ द मिनिमम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो हो सकता है केल्विन, वो केल्विन है। दिस इज़ वेरी केमिस्ट्री का हो जाएगा, हम स्टैट्स में ही रहते हैं। इतना समझ लो कि इंटरवल में फिक्स्ड गैप होता है, उस पर सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते, सॉरी, रेशियो, और उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। ओके, सो रेशियो में क्या होता है, रेशियो में आप सब कुछ कर सकते हो, आप रिलेशंस बिल्ड कर सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपकी एज 30 है तो आप ट्वाइस हो 15 साल के एज से, हाँ, है ना। मतलब आपकी एज 30 है तो 15 साल दुगना हो आप, है ना। ये हम कह सकते हैं, एक रिलेशन है। आई नो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, बट आपको क्या है ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, तभी ये समझ में आएगा। मुझे भी पहली बार में कंफ्यूज बहुत हुई क्या है। बट एक बात बताऊँ, कोई भी सब्जेक्ट को ना ऐसे फर्स्ट ग्लांस में जज नहीं करना चाहिए। कोई सब्जेक्ट हो या कोई इंसान हो, इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो, उसको एक ग्लांस में जज नहीं करना चाहिए। उसको टाइम देना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, वरना यू बिकम अ जजमेंटल पर्सन। बहुत फिलॉसफी हो गई। सो एक वीक में तो यही सिखाया गया है कि क्या क्या कवर किया हमने। स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक कंप्लीटली रिलाइज ऑन डेटा, फिर उसमें 2 पार्ट्स है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल आगे के दिनों में कवर करेंगे हम, टुडे वी आर गोइंग डिस्क्रिप्टिव। उसमें भी उसको साइड में रख के व्हाट इज़ डेटा, डेटा में भी एनी इंफॉर्मेशन। हमने पॉपुलेशन और सैम्पल को समझा, सैम्पल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज़ द होल। उसके बाद हमने देखा कि देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डेटा, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में और 2 हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। उसके बाद हमने देखा कि स्केल ऑफ मेजरमेंट देर आर 4, नॉमिनल सिर्फ लेबल्स, ऑर्डिनल लेबल्स लेकिन ऑर्डर के साथ, इंटरवल, देर इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ
gap between two variables, and we can add and subtract them. There's our interval like temperature, CGP or whatever. वो सब रेशियो स्केल क्या है, उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन कुछ भी कर सकते हैं, एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो वो हो सकता है. सो आई नो दिस बिकम्स वेरी हैवी, बट पूरे हफ्ते की समरी है तो थोड़ा हैवी होगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट वीक्स कंटेंट. होप यू लाइक्ड इट. नहीं लाइक हुआ तो भी कोई बात नहीं. आई एम जस्ट explaining what I have learned. And if you like, then like, share and subscribe. and ये तो मैंडेटरी है, भी हर यूट्यूब के वीडियो में होता है, इसलिए मैंने बोला करो. लेकिन बाय.